Hello and welcome to excelNsee IAS. This is Mayur Sagar and we are studying the Indian polity by M Laxmikanth. In the last class, the union and its territory, that we have seen some of the basic terms like the territory of India, the union, the federations, what is the meaning of that. So when we say the territory, it is a broader term. It includes all, that is states, union territory or any of the acquired territory which is going to come in the future. So बेसिक ब्रॉडर डिस्कशंस में टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर टर्म्स है. ओके, दैट डिफरेंस क्या है हम लोगों ने समझा. आवर ऑफ द फाउंडिंग फादर्स दे प्रेफर्ड टू यूज द टर्म द यूनियन इंस्टीड ऑफ द फेडरेशन. सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन टर्म्स कहीं भी मेंशन्ड नहीं है. सो फाउंडिंग फादर्स से दैट इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द फेडरेशन वेयर द स्टेट्स डू नॉट हैव राइट ऑफ सेसेशन. And our constitution is not the agreement. It is not the result of an agreement like the federations of the United States of America. Okay, so Indian constitution is distinct in certain aspect. So that our constitution is described as it is indestructible union of destructible states. Administrative convenience के लिए, governance के लिए, exigencies of needs के लिए, the territorial integrity, the continued existence of the states, it can be altered by the unilateral actions of the parliament. By the central government can destroy the state's government, but the vice versa is not true. So हम लोग आज देखेंगे कि how in that article 1, 2, 3 and 4 that all things very lucidly organized, very scientifically organized, and rest of the concepts we will take up in the today's part. So friends, let's begin with the today's class. So friends, in the last class, what we have seen, Article 1 in short क्या बोलता है? It basically talks about that India, that is Bharat, is a union of states instead of federations. We have understood कि union और federations का क्या difference meaning है. Article 2 क्या tricks था? That is the admissions plus establishment of a new states. Okay, incorporations to the union territory. ये एक enabling provisions है. क्यों? क्योंकि ये territory को increase करने की बात करता है. So it is an enabling provision. Article 3, it talks about what? Internal reorganizations. Okay, so it means territorial integrity की बात यहाँ करेंगे. Internal reorganizations का मतलब states के boundary, states को name, states के areas को diminish, increase कर सकते हैं, change कर सकते हैं. That is Article 3. So Article 2 and Article 3 में कुछ भी काम करना हो, so for this we need a law, for this we need a legislation, और वो legislation Article 4 उसको validate करेगा. ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉज फॉर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जो काम करे जाएंगे, सो दोज आर वैलिडेटेड थ्रू ए लॉ एंड दैट इज एक्चुअली डील्ड बाय आर्टिकल नंबर 4. सो आर्टिकल नंबर 4 ये भी बोलता है, वी विल सी फर्दर दैट दोज लॉज आर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं होंगे. ओके, इट मींस दीज डू नॉट फॉल अंडर द आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने का प्रोविजन प्रोवाइड करता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है. सो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो भी लॉज होंगे, दे डू नॉट फॉल विद इन आर्टिकल 368. क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे, आई विल डिक्टेट ऑल. सो इसको अमेंड करना होगा, तो आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? दैट द लॉज डू नॉट फॉल विद इन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368. क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. India is a sovereign states. The sovereign states has capability to acquire the foreign territory. तभी वो acquired territory का provision हमने बताया था. So क्या international, कौन से international mode होते हैं जिसके through कोई भी sovereign states like India can acquire any of the foreign territory? ये 3 basic the mode of international law होते हैं. First it is cession, second is occupation, and third is conquest. It is very important. Okay. So friends, इसको आप याद रखना, because in the exam directly the questions can be asked, or you might confuse. So what is cession? Cession is basically that through a treaty, purchase, gift, lease और plebiscite. Plebiscite हम लोग direct democracy में बात कर चुके हैं. इसके through किसी भी part of the territory को acquire कर सकता है. ओके, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई परचेज के थ्रू ना. ऑक्यूपेशन का मतलब कोई हिदरटू अनरिकॉग्नाइज्ड रूलर है जो इसके कंट्रोल में कोई पार्ट ऑफ द लैंड है उसको एक्वायर करता है, ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो मोनार्की से जो इसमें हमारे सोवरेन स्टेट्स में आता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशंस. एंड कॉन्क्वेस्ट मतलब लेट्स से थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इन द न्यूज दैट रशिया इज क्लेमिंग ओवर द क्रिमियन पेनिनसुला. क्रिमियन पेनिनसुला किसका पार्ट था? यूक्रेन का. सो यूक्रेन
के पार्ट क्रिमियन पेनिसुला को रशिया क्या बोलता है कि इट इज नाउ द सोवरेन पार्ट ऑफ द रशिया. इट मींस इट इज बिकमिंग ए पार्ट एक्वायर्ड टेरिटरी. ओके, सो नाउ किस प्रोसेस के थ्रू है ये? बाय कॉन्क्वेस्ट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सबजुगेशंस. सो 3 रिकॉग्नाइज्ड मोड है, सीसन, ऑक्यूपेशन एंड कॉन्क्वेस्ट. ओके, सो कोई भी सोवरेन स्टेट्स इन 3 मोड के थ्रू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ जो भी प्रोसेस है, they are governed by some constitutional backup and some constitutional that provisions. So that is why it is said the supremacy of constitution provide all framework to doing that. So now understand about that article number 2. Article 2 क्या बोलता है? That is the admissions of a new state and establishment of a new state. Admission of a new state का मतलब that is territory of India. उसमें किसी new states को, new territory को admit करना. So admission कब होगा? जब वो state already exist कर रहा होगा. इसका मतलब कि जो टेरिटरी लैंड मास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात करेगा थ्रू एडमिशंस. बट एस्टेब्लिशमेंट्स, लेट्स से कोई एक्वायर्ड टेरिटरी हो गया. अब एक्वायर्ड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द नीड्स हम लोग उसको अपने साइज के हिसाब से बना लेंगे, एंड देन इट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट. Getting my point? So Article 2 grants 2 powers, that is power to admit into the Union of India a new state and power to establish a new state. तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर लेट्स से आफ्टर एक्वायर्ड, ओके, व्हेन वी एक्वायर्ड द टेरिटरी उसको अपने हिसाब से क्रिएट करके, एस्टैब्लिश करके और उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम लोग. गेटिंग माय पॉइंट? सो आर्टिकल नंबर 2 इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजंस. ओके, इसको आप ध्यान रखना. व्हाई इट इज इनेबलिंग? इनेबलिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में उन प्रोविजंस को बोला जाता है व्हिच इज स्ट्रेंथनिंग. Okay, it is going to strengthen our the union configurations. That is why that article number 2 it is called enabling provision. Now let us understand that article number 3. It is very important. Article number 3 it basically talks about the territorial integrity. Territorial integrity की हम लोग बात already कर चुके हैं, because states do not provided or guaranteed with the territorial integrity. गेटिंग माई पॉइंट? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब उसके बाउंड्री, उसके लैंड, उसके नेम, उसके एरियाज को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है. ठीक है, वो परमानेंट नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. नाउ आर्टिकल नंबर 3 से दैट देयर आर द सर्टेन प्रोविजंस बाय द एक्शंस वी कैन चेंज द नेम, एरिया, बाउंड्री दैट ऑफ दैट स्टेट्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स से what are the provisions mentioned in article 3? That is called internal readjustment per se, that is territorial integrity of the state. So we can form a new states by separating the territory from any state, और किसी और के साथ combine करके we can increase the area, we can diminish that area, we can alter the boundary, we can change the name. ये सारे provisions, all those provisions comes under the article number 3. Getting my point? This is a state, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका एरिया को चेंज कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी और स्टेट्स के किसी पार्ट को वी कैन ब्रेक इट एंड वी कैन ऐड हियर. सो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब उसके चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स. दिस इज कॉल्ड द नॉन गारंटीड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. गेटिंग माई पॉइंट? इट इज गिवन फॉर द स्टेट्स. लेकिन क्या सेंटर को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है? यस. ओके, नेशन स्टेट इंडिया को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है. सो इट इज कॉल्ड the internal reorganizations. Why it is done? Because for administrative convenience. Why it is done? For administrative convenience. Getting my point? So let's move further. Now, whenever under article 3, article number 3, internal readjustment की बात करेंगे, so उसके लिए एक bill introduce करना होगा, and that bill to be introduced in the parliament only, not in the state legislature. Getting my point? Second, with the prior recommendations of the president. So दो important point है. Bill for internal readjustment that should be introduced in parliament only. Parliament में ही introduce होगा और president के prior recommendation से. उसको state assembly में introduce नहीं किया जा सकता. Second point क्या है? That president refer करेगा जिस states के साथ वो internal reorganizations की बात चल रही है, उस states को, state legislature को president refer करेगा to elicit the opinion of that state within a specified time. Okay, ऐसा नहीं कि कभी भी आप अपने opinion को tender कर रहे हो. So for a specified time, within a specified time, that state will tender the opinion to president or the parliament. And here the parliament or president is not bound with the opinions of the opinion tendered by the states. इसका मतलब क्या हुआ simple terms में कि the parliament is through unilateral actions can change the
territorial integrity of the state? Yes, the parliament through an unilateral actions can change with the continued existence of the states. Getting my point? ये क्यों किया गया है? This is done for the two reasons. Number one reason, indestructible union of destructible state, that is union is indestructible. Second reason is that unitary feature, that is strong centralizing tendency. इसके लिए भी किया गया है. Okay, now let's see. दो पॉइंट क्या याद रखना है? जब बिल फॉर द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट से, और कंसेंट ऑफ द स्टेट है, बट कंसेंट ऑफ द स्टेट ऑब्लिगेटरी नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. यू रीड द आर्टिकल ना, होपफुली यू कैन गेट एंड अंडरस्टूड द आर्टिकल. एक कॉन्टेक्स्ट है कि इन यूएसए मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या था? इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. इसका मतलब क्या है कि यूनियन विद यूनिलैटरल एक्शंस स्टेट्स के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खत्म नहीं कर सकता है. याद करिए, स्टोरी बताया था. सो अमेरिका वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द 13 कॉलोनीज एंड 13 कॉलोनीज थ्रू एन एग्रीमेंट उस फेडरेशन को बनाया. गेटिंग माय पॉइंट? सो थ्रू एन एग्रीमेंट अमेरिकन फेडरेशन बनाया, बट इंडिया एग्रीमेंट के थ्रू बना है क्या? नो. दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. इन अमेरिका इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. मतलब अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात कीजिए, दैट हाउ अमेरिकन फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. इट इज थ्रू एन एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स. It is through an mutual consensus of the state. States have territorial integrity. States have continued existence. State is permanent. On the other hand, union is also permanent. मतलब union through an unilateral action states को खत्म नहीं कर सकता, because state have territorial integrity. On the other hand, India indestructible union of destructible states. मतलब union के पास क्या है? परमानेंट एग्जिस्टेंस. बट स्टेट्स के पास परमानेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं. स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है? नहीं. स्टेट के पास कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है? नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 3. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग नाउ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल नंबर 4. आर्टिकल 4 क्या बताया इन ब्रीफ? क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपील करता है कि आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 में जो भी काम करना है. आर्टिकल नंबर 2 में क्या करते हैं? दैट इज एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट. आर्टिकल नंबर 3 में क्या करते हैं? दैट इज री एडजस्टमेंट. ओके, जो हमारा टेरिटोरी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. सो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लिए जो भी काम करेंगे, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? दिस इज द क्वेश्चंस, बिकॉज वी आर डीलिंग एंड वी आर डूइंग विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके साथ कुछ कर रहे हैं. सो इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या उसके विद इन में, उसके परव्यू में आएगा? सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के परव्यू में ये नहीं आएगा. ओके, दैट इज द आर्टिकल नंबर 4. आर्टिकल नंबर 4 से दैट द लॉज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल नंबर 368. Okay, so before moving further, let us understand a little bit about the article number 368. आर्टिकल 368 को क्या बोलते हैं हम लोग? द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, इट मींस थ्रू दिस पावर इट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है. मैंने पहले भी बात करी है. सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में और इन जनरल कितने तरीके होते हैं? नंबर 1 through special majority, number 2 special majority plus consent of the state, and number 3 simple majority. Okay, so ये दो provisions, that is special majority, it comes under article 368. So there are 3 method, number 1, number 2 and number 3. दो special majority और एक simple majority से. Special majority याद है सबको? I have already discussed all these in the previous classes. I repeatedly urge those who missed the classes, please go and complete the previous one. But for the time being, so special majority means the total membership का 50% plus 1. Second, that is 2/3 of the present and voting. इस conditions को collectively special majority बोला जाता है. What is that? The total membership का 50% plus 1 और 2/3 of the present and voting, ये condition satisfy होगा. This is called special majority. प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, सेकंड प्रोविजन है ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट. मतलब 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इसको असेंट करेगा, उसको इसके फेवर में वोट करेगा, देन सेकंड कंडीशन इज क्वालिफाइड. एंड सिंपल मेजॉरिटी नॉर्मल 50% प्लस 1 क्राइटेरिया से. सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज. कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किए जाते हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है. सो आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है और इन दोनों क्राइटेरिया को इनकॉर्पोरेट करता है. तो
हमारा आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 में जो भी हम लोग अमेंडमेंट करते हैं वो आर्टिकल 368 में आता है क्या? नहीं आता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो एक थर्ड क्वेश्चन आता है कि दैट अंडर आर्टिकल 3 इट टॉक्स अबाउट दैट डिमिनिशिंग ऑफ द स्टेट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात कर रहा है। तो क्या पार्लियामेंट इज सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट? क्या किसी भी पार्ट, इंडिया के किसी टेरिटरी या किसी पार्ट को फॉरेन कंट्री को दे सकता है? इज इट सो अंडर आर्टिकल नंबर 3? नो डियर, अंडरस्टैंड एवरी इन द पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। जो मन सो लॉजिक नहीं लगाने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्यों किया गया है? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्यों खत्म किया जाता है? अल्टर क्यों किया जाता है? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि टोटलिटी ऑफ टेरिटोरी को हम लोग खत्म कर देंगे, किसी को जैसे तैसे करके हम लोग उसको दे देंगे। इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल। गेटिंग माई पॉइंट? अंडर आर्टिकल नंबर 3 इट टॉक्स अबाउट नॉट डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है, उसके लिए हम लोग उसके बाउंड्री, उसके टेरिटोरी को छोटा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी पार्ट करके इंडिया का टोटल टेरिटोरी को हम लोग हटा सकते हैं। पार्लियामेंट नहीं कर सकता इन सब चीजों को, क्योंकि ये क्वेश्चन 1960 में उठा था। बिकॉज बेरुबारी यूनियन जो दैट इज कॉल्ड बंगाल, पाकिस्तान को देने की बात थी। So in that time that Supreme Court say that under article number 2, under article number 3, जो कि article 368 में नहीं आता है, that parliament cannot do that one। और इस तरह की arrangement, क्योंकि इंडिया is also a sovereign states, so sovereign states किसी part of territory को foreign country को दे सकता है, plus in that capacity वो किसी part को acquire भी कर सकता है। ठीक है? ऐसा काम करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। दैट इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू उसको करना पड़ेगा, एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 368। ओके, आर्टिकल 368 में क्या था? स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ होते हैं सिंपल मेजोरिटी। गेटिंग माई पॉइंट? सो आर्टिकल 368 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, और उसके बाद ही उस काम को किया जा सकता है, आइदर ट्रांसफर और टू एक्वायर एनी पार्ट ऑफ द लैंड। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 इट इज इनेबलिंग प्रोविजन है। नाउ कुछ लैंड बाउंड्री इशूज भी होते हैं, लैंड सेटलमेंट इशू होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट कैन बी डन थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ओके, इसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इतना इजीली नहीं हो सकता है। उसके लिए दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा, जो कंडीशंस है स्पेशल मेजोरिटी का उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। इवन प्रेसिडेंशियल एसेंट को ही हैव टू गॉट द प्रेसिडेंशियल एसेंट, देन दैट जुडिशरी कम्स, वेदर इट कम्स अंडर दैट व्हाट द judicial review, that is provisions of constitutions or not. So these are the important aspects we will take up in the amendment of the constitutions chapter as well. So now you can read the articles in your textbook as well, that this question 1960 ये भी उठा था। So that in 1969 Supreme Court said कि जो भी settlement होंगे, land boundary settlement, that do not require a constitutional amendment. It can be done through executive actions as it doesn't involve cession of the Indian territory in the foreign country. जहां भी सीसन की बात होगी, मतलब किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी को ट्रांसफर करने की बात होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरनल रीएडजस्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, एडमिशंस, ये बेसिकली इनेबलिंग प्रोविजंस है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। ओके फ्रेंड, लेट्स मूव फर्दर। सो आफ्टर टेकिंग अप द कॉन्सेप्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट जिसमें इवोल्यूशंस ऑफ द स्टेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट है दैट आई विल गोइंग टू डिक्टेट। ओके, रेस्ट यू कैन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हियर वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द इंटीग्रेशंस ऑफ द इंडियन स्टेट, कैसे प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट हुए। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे? सारे इंडिया में दो टाइप के एंटिटी थे। नंबर 1 दैट इज द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। सो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में था, और प्रिंसली स्टेट्स जो कि नेटिव रूलर्स रूल करते थे, एंड बट ओवरऑल दे वर आल्सो अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ओके, ब्रिटिश पैरामाउंट थी। पैरामाउंट कौन थे? ब्रिटिश सुप्रीमेसी था। सो टू टाइप्स को स्टेट से, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस, सेकंड द प्रिंसली स्टेट्स। सो Indian Independence Act 1947 that it provided for two type of independent dominion, एक इंडिया और पाकिस्तान। Getting my point? So princely states को बोला गया कि whether
to join the India, whether to join the Pakistan or to remain free. So इस तरह से लगभग 552 उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको बोला गया कि आप या तो इंडिया में ज्वाइन करो या पाकिस्तान में ज्वाइन करो या फिर इंडिपेंडेंट रहो, फ्रीली रहो. ओके, सो इंटीग्रेशन की बात चल रही है. सो अराउंड 549 स्टेट्स दे जॉइन द इंडियन यूनियन. 3 उसमें यू कैन से कॉल की विलन थे, हीरो थे, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर ये बोले कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे. कुछ इंटरनल डेवलपमेंट से वी विल टेक अप इन द सब्सिक्वेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन लेक्चर्स. ओके, उसके हिस्टोरी में नहीं जाना उतना. प्रिपेयर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर लेटर ऑन इंडियन यूनियन में भी ये शामिल हुए. किस तरह से हुए? थ्रू सर्टेन एक्शंस. हैदराबाद थ्रू सम पुलिस फोर्स, पुलिस एक्शंस. दैट इज जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम. रेफरेंडम क्या था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वीडियो में बताया गया है. इफ यू मिस्ड द कॉन्सेप्ट प्लीज गो एंड प्रिपेयर एंड फ्रॉम कंप्लीट दोज वीडियो. कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके थ्रू इंडियन यूनियन में शामिल होता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो you can call it the integration process started at that time. Princely states around 552 princely states थे, 549 joined the Indian Union and Hyderabad, Junagadh and Kashmir 3 different type के मोड से accession हुआ था to the Indian Union. Hyderabad through police force, Junagadh through referendum and Kashmir through instrument of accessions. Okay, so at that time, that is 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे इंडिया को बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में रखा गया था. दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पार्ट ए में कौन स्टेट थे, पार्ट बी में कौन थे, पार्ट सी और पार्ट डी में कौन थे. बिकॉज अभी कश्मीर के इशूज इंपॉर्टेंट चल रहे हैं. ओके, यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं. सो पॉसिबली द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया. सो पार्ट ए में कौन स्टेट्स को रखा जाता था? इन द पार्ट ए गवर्नर्स प्रोविंसेस होते थे, आप ट्रिक से याद रखिएगा. बी में जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे विथ लेजिस्लेचर, क्या होते थे? विथ लेजिस्लेचर. गेटिंग माय पॉइंट? और पार्ट सी में, सी है तो सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, सी याद रखिएगा. एंड डी अलग कैटेगरी था, अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था. गेटिंग माय पॉइंट? ए दैट गवर्नर्स प्रोविंसेस, बी दैट इज कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर्स, ओवरऑल अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी थे सारा. C, CCP, that is Chief Commissioner Provinces, and D under the Andaman and Nicobar Islands. Getting my point? Now in this chapter, the next important component, the committees and commissions. Okay, कौन से important committees and commissions थे for the reorganizations of the states. So now let us friend understand that जब हमारा देश आजाद हुआ, the next task was that it's a broader integrations. Okay, we are actually articulating that unified India. तभी एक स्ट्रेंथन और एक मजबूत भारत का सपना साकार हो सकता था. तो आवर फाउंडिंग फादर्स दैट टुक अप एफर्ट टू डू दैट टास्क. ओके, सो कुछ कमिटी एंड कमीशंस बनाए गए थे. इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कमिटी है, दैट इज धर कमीशंस, जेवीबी कमिटी एंड फजल अली कमीशंस. वी विल टॉक अबाउट दैट. सो बिफोर दैट फ्रेंड्स, यू नोट दैट कमिटी एंड कमीशंस लिखा हुआ है. आई एम लिविंग ए क्वेश्चन टू यू दैट यू कैन सॉल्व. प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिटी एंड कमीशंस. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कमिटी एंड कमीशंस तो अक्सर सुनते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? ओके, आई विल डिक्टेट इन द सब्सिक्वेंट पार्ट, बट दोज प्लीज लीव इन द कमेंट्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट 1950s के आसपास ये नेशनल इंटीग्रेशंस की बात चल रही थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस की बात चल रही थी. तो जो इंटीग्रेशन प्रोसेस था, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस था, ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था. क्या अरेंजमेंट था? एडहॉक अरेंजमेंट. एडहॉक टर्म यूज करते हैं हम लोग. एडहॉक मतलब टेम्पररी, ओके, और दैट इज परमानेंट, उसको स्टैंडिंग भी बोलते हैं. सो परमानेंट होते थे और एक एडहॉक अरेंजमेंट होते थे, टेम्पररी अरेंजमेंट थे. सो नेशनल इंटीग्रेशंस, भारत में एक कल्चर्ड सोसाइटी थी. ओके, एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी है. तो क्या फोर्स था, क्या फैब्रिक था जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकता था? दैट वाज द मेन टॉपिक. सो साउदर्न स्टेट्स सेइंग दैट हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट्स के फॉर्मेशन होने चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन होना चाहिए, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और लैंग्वेज विल प्रोवाइड ए बेटर कोर्स ऑफ इंटीग्रेशंस. ठीक है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रेशर्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स दे सॉ एंड दे एक्चुअली फॉर्म ए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी. ठीक है. सो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी, LPC 1, LPC 2 और
उसके बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। तो 3 इंपॉर्टेंट है, LPC1, LPC2 एंड SRC। गेटिंग माय पॉइंट? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म ए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके किनको चेयरमैन बनाया गया था? SK धार। तो SK धार को ये टास्क दिया गया था वेदर ऑब्जर्व कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कमिटी, दैट इज SK धार कमिटी। गेटिंग माय पॉइंट? देन इसके बाद फिर इस कमिटी ने बोला कि नो सर, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे इंटीग्रेशन होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में उसके बाद फिर LPC2 बना, जो कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। वही LPC2 क्या था? इसके 3 मेंबर्स थे, जिसको बोलते थे JVP। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सिद्धारमैया। ये तीनों ने मिलकर देखा कि क्या इसको करा जा सकता है क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और अल्टीमेटली इन्होंने बोला कि नो, लैंग्वेज के बेसिस पे बेसिकली स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। ओके, फिर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे अराउंड 1948 के आसपास ये सब हो रहा था। 1953 में गवर्नमेंट को फोर्सफुली फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना पड़ा, और वो कौन था? आंध्रा स्टेट्स। जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, ओके फ्रेंड्स याद करिए, द ब्रिटिश में 3 मेजर प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, BBM। गेटिंग माय पॉइंट? सो मद्रास प्रोविंसेस साउदर्न स्टेट्स को बुलाया जाता था। सो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे, ऑन द डिमांड ऑफ दैट इन 1953 गवर्नमेंट हैव टू क्रिएट द आंध्रा स्टेट्स। दिस वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद द पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हो गए। ओके, द पॉलिटिकल लीडर्स नाउ एजिटेटेड, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने लगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो, रीइंटीग्रेशन हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो उसी में से कांग्रेस वेटरन लीडर थे, दैट इज कॉल्ड पोटिश्री रामालू। उन्होंने 56 डे की हंगर स्ट्राइक के बाद उनका एक्चुअली देहांत हो गया था। तो इससे और पॉलिटिकल कियोस क्रिएट होते चला गया, और फिर लैंग्वेज के बेसिस पे भी स्टेट्स बनते चले गए। ठीक है, तो उसी बीच में क्या था कि एक कमिटी बनाई गई जिसको कि फजल अली कमीशन बनाया बोला गया, दैट इज 1953। इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। सो SRC बनाया गया 1953 में, और इसके 3 मेंबर्स थे। कौन थे? पहला तो फजल अली जो इसके चेयरमैन थे, दूसरा कौन थे? कुंजरू थे, एंड थर्ड कौन थे? पानीकर। तो याद रखिएगा, फजल अली, कुंजरू एंड पानीकर। उनको बोला गया कि पूरे क्वेश्चंस को फ्रेशली रिविजिट कीजिए और बताइए कि किस तरह से हमें करना चाहिए। तो ही से दैट ओके, दैट लैंग्वेज कैन नॉट बी डिनाइड, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं स्टेट्स के, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट्स का जो प्रिंसिपल है उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। ही सेड दैट मैक्सिमम यूनिटी रखना चाहिए, बिकॉज हमारा कल्चर, जो कल्चर है, कल्चर इज द वे ऑफ द लाइफ। कल्चर एक्चुअली प्रोवाइड दैट फैब्रिक जो हमें यूनाइट करता रखता है फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, इवन फ्रॉम द एंशिएंट टू द नाउ। हमें इस कल्चरल इंटेग्रिटी ने ही बांध के रखा है। सो लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम यूनिटी होनी चाहिए। और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया कि जो भी स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए जाएंगे दैट शैल बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। एंड क्या क्या क्राइटेरिया दिए थे? उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे, UHAW। ठीक है, यू हाउ, इसको याद रखिएगा। सो व्हाट वाज दैट? दैट इज unity, maximum unity, that is linguistic and cultural unity. Then second, it talks about homogeneity, that is that linguistic and cultural homogeneity. Third, it talks about administrative convenience, and fourth, it talks about the promotions of the welfare of the people. ये 4 conditions satisfy होनी चाहिए। So friends, trick क्या है? जो भी जितने कमिटी एंड कमीशन है उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? दैट इंटीग्रेशन प्रोसेस था, नेशनल इंटीग्रेशन था। ये कोई हमारे समारोह की तरह था, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, ओकेजन था। तो समारोह में क्या होना चाहिए? पार्टी साटी होना चाहिए। सो समारोह में द ट्रिक की द डीजे तो होना चाहिए। सो डीजे किसका होगा? डीजे फजल अली का होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द ट्रिक। सो डीजे फजल अली का होगा, ट्रिक याद रखने का। सो डी फॉर धार कमीशन, जे फॉर जेवीपी कमिटी एंड फजल अली इट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये दोनों क्या थे? LPC थे, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटी, एंड ये क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। ठीक है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे था। एंड सेकंड, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को रिकमेंड किया था। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इट टॉक्स अबाउट दैट UHAW के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आई होप गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज ऑल आर written here in the text. You can read from your the textbook as well. Okay, so understand the concept. What was the story? This is the in brief, this is the story. State reorganization का दौर था। Okay, पहले लिंग्विस्टिक द फोर्स उठा फ्रॉम द साउदर्न इंडियन स्टेट्स,
लेकिन लिंग्विस्टिक के बेसिस पे एक एलपीसी बनाई गई, उन्होंने डिनाई किया कि नो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए। सेकंड फिर एलपीसी बना जिसके जेबीपी मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि फाइनली रिजेक्ट किया। देन 1953 में क्या बना, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन बना, आंध्रा स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। देन एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और उन्होंने बोला कि ओ यस, यू कैन मेक द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट्स के प्रिंसिपल को उन्होंने डिनाई किया एंड ही गिवन सर्टेन क्राइटेरिया दैट शैल बी फॉलोड इन केस ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। क्या थे, UHAW। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ऑल आर रिटन हियर, ओके। सो नाउ फ्रेंड, इन दिस चैप्टर that is in 1956 हमारे पास that is the 14 states थे and the 6 union territory था, ओके। फिर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है, न्यू स्टेट्स बने, ओके। जैसे 2000 में झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स बने। इसी तरह से टाइम टू टाइम स्टेट्स बनते चले गए थे। द एंटायर एपिसोड इज रिटन इन योर बुक, आप उसको पढ़ लेना। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओनली यू रिमेंबर द डेट्स कि किस डेट्स को क्या बना और किसके कॉलोनियल कंट्रोल में था। Do not read all those, okay, because those are not very useful to you. They are only from the mains perspective, okay, जब हम लोग उसको डिटेल में बातें करेंगे। Apart from that, some indices are given in your the textbook. You go through the superficial note, but most important, you remember article 1 to 4, okay, इसको word by word याद कर लेना है, okay. So here that we are concluding this chapter and we have almost covered almost all the aspect in this chapter. So this chapter actually talks about the union, federations and some of the important terms. It basically talks about the union, federations and the territory. Territory is the most broader term. It includes the states, union territory and that acquired territory. We have understood all the aspects. Article 1 actually it talks about the union, it defines the concept. Article 2 it talks about the admissions. It is an enabling provision, increase the territory of that Indian Union. Third, it actually talks about that readjustment on the basis of administrative convenience. Administrative convenience के लिए states के reorganizations, ये दोनों enabling provisions है। और ये दोनों प्रोविजंस को करने के लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल 4 बोलता है ये दोनों आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, लेकिन किसी भी एज ए सोवरेन स्टेट्स इंडिया किसी भी पार्ट को एक्वायर कर सकता है, इंडिया किसी भी पार्ट को सीड कर सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ेगी और वैसा तभी किया जा सकता है विद द प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ। आर्टिकल 3 में एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रेसिडेंट रेफर दैट बिल to the states for eliciting their opinion, but here the president is not bound with the opinions tendered by the states. Getting my point? Bound नहीं है। इसका मतलब territorial integrity मैंने बार बार बताया है, it is not ensured. Permanent existence is not ensured. Getting my point? Now जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होंगे उसको किस तरह से देखा जाएगा, थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शंस। नाउ इंटीग्रेशंस की बात चल रही थी, तो इंटीग्रेशंस में किन किन कमिटी कमीशंस को याद रखना है, दैट इज समारोह। द ट्रिक वाज डीजे फजल अली का। गेटिंग माय पॉइंट? धर कमीशन, जेबीपी कमेटी एंड दैट लास्ट वन वाज दैट फजल अली कमीशंस। ओके फ्रेंड्स, तो कमिटी कमीशंस में आप आंसर लिख के कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट। So tomorrow we will take up the next chapter, that is the citizenship of India. Okay, so at last that we are concluding our the lectures here, so that keep revising your the text, keep reading, you should stay safe, stay healthy and have a nice day.